Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Farooq, your course instructor for the subject of GIS and remote sensing. This is week number 8 and it is the last week before the midterm exams. In the previous week, we talked about digital terrain modeling and digital elevation modeling, and we defined the basic difference between digital terrain model and digital elevation model. So in digital terrain model, we have uh, we have topographic information in addition to the height values. But in digital elevation model, we just have the information regarding the height values. Then we talked about the different examples, and then we proceeded with the sampling approaches to prepare a DTM. Right. So there are two approaches like systematic approach and adaptive approach. In systematic approach, we have the example like DEM based on the sampled data on regular intervals, and then we have adaptive, that is called as TIN approach, and that is based on the irregular sampled data at selected locations. All right, so then we talked about in little detail how the sampling approaches are working, like the systematic sampling approach and adaptive sampling approach. All right, so these are the examples of the surfaces. Those are generated by the tin approach or adaptive approach, and by the DEM approach or the systematic approach. Then we talked about the characteristics of the DEM, and later we talked about the characteristics of the tin surface, and then we talked about the methodology, how to draw the contours or how to prepare the algorithm so that it can draw the contours based on the data that is generated from the adaptive sampling approach, and how you can precisely draw that data to represent the topographic features and elevation in a more precise manner. So you can see here there are different type of wayouts through which you can draw the contours, but we must have a very precise kind of approach based on some mathematical algorithms, so that it can draw the surfaces in a more accurate manner. All right, so Delaunay triangulation method was explained, and then we talked about the advantages and disadvantages of DEMs and TINs. And so today we are going to talk about how we can acquire the digital terrain data, and then we will talk about what are the different type of applications of DTM and DEM in the earth sciences and engineering field. So how we acquire the data to prepare a DTM. So the first most important example is the field surveying. Field surveying is what you do actually. So you already have done the uh, field surveying projects in your previous semester. So where you have prepared the topographic sheet. So that is a kind of DTM, but that is in hard form. So you can actually transfer the same sheet, same data into digital manner by using the GIS, and you can prepare the DTM based on your field data, and you can check the accuracy.
सबसे पहले तो आपके पास आ गया फील्ड सर्वेइंग। मेरे ख्याल में सबको सर्वे आता है और शीट्स भी बनाई हुई हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है डिजिटल टरेन मॉडल को प्रिपेयर करने का, और इसमें आप क्या यूज कर रहे हैं, अडेप्टिव सैम्पलिंग। टिन अप्रोच जो है वो आपने इसमें अप्लाई की थी। अनदर मेथड इज द फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री में आप क्या करते हैं कि आप एरियल फोटोग्राफी जैसे होती है, आप एयरबोर्न सर्वेस करते हैं। उन सर्वेस की मदद से फिर आप टोपोग्राफिक जो सरफेसेस, जो टोपोग्राफिक इंफॉर्मेशन है डिफरेंट एरियाज की, वो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसकी बेस के ऊपर फिर आप डिजिटल, उसके ऊपर अगर आप एलिवेशन की जो जो एलिवेशन के जो पॉइंट, जो डिफरेंट पॉइंट्स जो आप वहाँ से सर्वेइंग के थ्रू लेंगे, उसको फोटोग्रामेट्री के ऊपर जो आपके पास जो डाटा आएगा, दोनों को मर्ज करेंगे, तो इस तरह से आप डीटीएम जो है वो बना सकते हैं। या फोटोग्रामेट्री से जो आपके पास जो इमेजेस आएंगे, उसको अगर आप सिंपल टोपोग्राफिक शीट्स के ऊपर उसके ऊपर आप उसको ओवरलैप कर दें, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो डिजिटल टरेन मॉडल इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली उसके बाद आपके पास जो है वो कार्टोग्राफी एंड डिजिटाइजिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग मैप्स, कि आपके पास हार्ड फॉर्म में मैप्स हैं तो आप उसको डिजिटाइज करेंगे, डिजिटाइज करके उसके बाद आप उसमें उसमें क्योंकि आपके पास कंट्रोल पॉइंट्स भी होंगे हॉरिजॉन्टल एक्स वाई, और उसके बाद आपके पास होंगे वर्टिकल एलिवेशन जो इंफॉर्मेशन है ऑफ द सेम पॉइंट्स, तो दोनों को आप इकट्ठा करेंगे, डिजिटाइज करेंगे, तो आप उससे जीआईएस के अंदर भी जो है वो टिन सरफेस जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप रिमोट सेंसिंग के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, और वो भी एक वे आउट है कि आप सैटेलाइट बेस्ड आपके पास जो टोपोग्राफिक इंफॉर्मेशन आती है, उससे भी डीटीएम सरफेसेस जो है वो जनरेट हो जाती है। These are the same methods, those are discussed in the previous slide. तो उसमें आप देखेंगे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है डिफरेंट मेथड्स के लिए, और उसकी एक्यूरेसी कितनी है, फिर एरियल कवरेज कितनी है, उसके बाद आपके पास है टिपिकल एप्लीकेशंस। अब इसमें आप एक चीज ये देखें कि जो ग्राउंड सर्वे है, जो कि टोटल स्टेशन या अदर जो लेटेस्ट जो आपके पास सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट्स है, वहां से जब आप करते हैं तो दैट हैज वेरी हाई एक्यूरेसी। उसकी रीजन क्या है कि आप ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और एक्चुअली उन पॉइंट्स को आप देख रहे हैं, उसके बाद वो उसकी इंफॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एरर है वो हो सकता है कि इन मिलीमीटर्स हो, या माइक्रो मिलीमीटर्स में भी इसका एरर जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब आप सैटेलाइट बेस्ड या फोटोग्रामेट्री या इस तरह से दूसरे जो रिमोट जो आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं उसको यूज़ करेंगे, तो उसमें डेफिनेटली एरिया ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर आपने छोटे एरियाज पे काम करना है तो उसमें फिर प्रेफर्ड जो मेथड है डिजिटल टरेन मॉडल को बनाने का, वो है ग्राउंड सर्वे। ऑल राइट, so now we are going to talk about the application of digital terrain modeling and digital elevation modeling, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले अब हम आते हैं कि जो हमारे पास डेटा आता है, जब आप टोपोग्राफिक शीट बनाते हैं तो उस पे आपके पास एलिवेशन का डेटा है, ठीक है। पहले हम सॉफ्ट फॉर्म में देखते हैं कि उस पे उसमें क्या है, और जो आपके पास हार्ड फॉर्म में है उससे हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आपके पास स्ट्रक्चर जियोलॉजी में आपने जो एक्सरसाइजेस की थी उसमें आपके पास टोपोग्राफिक शीट्स भी होंगी या मैप्स होंगे, उस पर आपने प्रोफाइल्स भी ड्रॉ किए होंगे कि आपके पास अगर कंटूर लाइंस हैं तो आपने डिफरेंट ओरिएंटेशन में आपने क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ किए होंगे, ठीक है। वो क्रॉस सेक्शन जो है वो इस तरह के नज़र आ रहे होंगे कि मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किए होंगे, ठीक है। कि उसमें वी प्रोफाइल है, इन्वर्टेड वी प्रोफाइल है, या जो भी वैली का प्रोफाइल है उसको कंटूर्स की मदद से आपने ड्रॉ किया होगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली जो टोपोग्राफिक मैप है वो आपके पास
जो है वो काइंड ऑफ डीटीएम ही है, जिसमें एलिवेशन की इंफॉर्मेशन भी है, उसके बाद अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन भी गिवन है। ठीक है, तो आपने मैनुअली एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से आप और भी इस तरह से जो इंफॉर्मेशन है आप वहाँ पे स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जो एरिया है उसके अंदर जो स्लोप है उसका क्या ग्रेडियंट है, ठीक है, उसकी स्लोप कितनी है। और इसी तरह से आप उसका एस्पेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जो स्लोप है वो ओरिएंटेट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो फीचर्स हैं वो आप मैन्युअली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास डिजिटल अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में टोपोग्राफिक मैप है। तो सेम काइंड ऑफ एप्लीकेशंस को आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में डेटा है। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ डिजिटल एलिवेशन मॉडल that is extracted from a satellite imagery। ठीक है, जो सैटेलाइट इमेजरी है उधर से आपके पास सैटेलाइट से आपके पास एक एलिवेशन मॉडल आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास आ जाता है एस्टर, एक जो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, एस्टर जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, उससे सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, उससे भी आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल ऑब्टेन करते हैं और उसकी रेजोल्यूशन होती है 30 मीटर। ठीक है, तो 30 मीटर का मतलब क्या है, 30 बाय 30 मीटर का एक ग्रिड, ठीक है, सरफेस के ऊपर। ऑलराइट, तो अब वो जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है उससे आप डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को डिजिटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जीआईएस को यूज करके। तो उसमें सबसे पहले तो आपके पास डेफिनेटली एलिवेशन की वैल्यूज तो आती हैं, डिफरेंट ग्रिड्स की बेस के ऊपर आपके पास एलिवेशन की वैल्यूज आ जाती है। उसके बाद आप एरिया की स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, कि डिफरेंट ओरिएंटेशंस में जो आपके पास जो टोपोग्राफी है उसकी स्लोप की वैल्यू क्या है। आस्पेक्ट की, जैसे मैंने कहा कि वो जो स्लोप है वो किस डायरेक्शन में जो है वो ओरिएंटेट कर रही है, कि आप उसका आस्पेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल जो है वो ब्रंटन कंपास यूज करते हैं तो आप स्ट्राइक फाइंड आउट करते हैं, आप डिप डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास आस्पेक्ट आ जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर स्लोप जो है वो किस तरफ जो है वो ओरिएंटेट कर रही है। ठीक है, कर्वेचर क्या चीज है, कर्वेचर मैप जो होता है इसमें ये होता है कि आपके पास जो स्लोप है, जैसे ये स्लोप है ये वाली, ये स्लोप कॉन्वेक्स अपवर्ड है या कनकेव है, मतलब स्लोप की जो कनकेविटी या कन्वेक्सिटी जो है उसको डिटरमिन करने के लिए कर्वेचर मैप जो है वो भी डिजिटल एलिवेशन मॉडल से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फ्लो पाथ का मतलब ये है कि जो वाटर है वो किस तरह से किस डायरेक्शन में फ्लो करता है और फ्लो करके उसका वो कहाँ पे जाके कोलेक्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो किस किस्म का है, मतलब किस तरीके से आपका जो पानी है वो डिफरेंट एरिया से एक्सट्रैक्ट करता हुआ नीचे जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप, जैसे आपके पास डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो ड्रेनेज पैटर्न्स हैं उसमें क्या होता है कि आपके डिफरेंट चैनल्स आपस में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके तो वो नीचे लोअर एरियाज में पानी जो है वो जो नीचे रिवर्स होते हैं उसके अंदर कलेक्ट होता है। तो आप ड्रेनेज पैटर्न जो है फ्लो पाथ की मदद से आप ड्रेनेज पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप ड्रेनेज पैटर्न से आपके पास वाटर शेड एक्सट्रैक्ट हो जाता है कि वाटर शेड, अब ये अगर इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न है तो ये इसका जो वाटर शेड है वो इस तरीके का होगा, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ना, ये अगर कोई पर्टिकुलर रिवर है तो उसका ये वाटर शेड एरिया जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली, जैसे कि पहले बात की कि क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल यहाँ पे गिवन है ये इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ काइंड ऑफ डिजिटल एलिवेशन मॉडल। अब ये ग्रिड्स हैं सारे, ये देखें, हर ग्रिड में लेट्स सपोज ये एलिवेशन की वैल्यू है। ठीक है, अब आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यूज कहाँ पे है। देखिए, जैसे ये हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे है, ये है, इधर है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये देखें तो
इस तरफ को मूव करें और उधर उसके बाद आप इस तरफ मूव करें तो आपको जो है ना लोवेस्ट पॉइंट इस रो के अंदर पता चल जाएगा। लोवेस्ट पॉइंट की एलिवेशन क्या है? 16। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें तो ये एलिवेशन उससे कम है, उससे कम है, तो इट मीन्स कि ये इस तरफ भी काफी ज्यादा एलिवेशन कम हो रही है। ठीक है, फिर आप ओवरऑल ट्रेंड यहाँ देखें तो इस तरफ भी कम हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ ऐसा एरिया है, मतलब जहां पे ये ऐसे अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इस तरह का है। ये जो एरिया, ये जो पॉइंट्स हैं ये एलिवेटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना वो एलिवेशन की वैल्यूज कम हो रही है इस तरह से। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको अब इससे ये पता चल जाएगा कि नीचे की तरफ जब एलिवेशन कम हो रही है तो पानी का फ्लो उस तरफ ही जाएगा ना। तो जो जीआईएस सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, जब आप उस पे कहते हैं कि फ्लो डायरेक्शन जो है वो आप फाइंड करें, तो उसमें आप ये देखें, ये वाला जो मैप है ड्रेनेज फ्लो पैटर्न जो आपका यहाँ नजर आ रहा है, अब ये देखें यहाँ पे ये जो कमांड है ये आपको बता देगी कि पानी ने किस तरफ फ्लो करना है। ठीक है, कि जो ये वाला ग्रिड है ये डिसाइड करेगा कि पानी ने जाना किधर है। अब देखें कि इसके साथ में अगर वो इस तरफ जाना चाहे तो ये आपके पास इसकी वैल्यू 17 है। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे इसके बाद इसके करीब ये वाला जो है पॉइंट, यहाँ पे आप देखें तो इसकी वैल्यू 15 है। तो लोवेस्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे है, वो है 14। ये देखें ए फिगर में, इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट एरो है वो इस तरफ होगा। ये देखें, ये रिजल्टेंट एरो जो है वो इस तरफ होगा। ये चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली जो हर ग्रिड है उसके अंदर फ्लो डायरेक्शन का जो एरो है वो डिसाइड करेगा कि मैंने ऊपर वाले ग्रिड की तरफ जाना है या नीचे वाले की तरफ जाना है या साइड वालों की तरफ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एरोस जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ये अपनी डायरेक्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आपके पास जो है वो ओवरऑल जो है वो ड्रेनेज पैटर्न जो है वो उसका जो है वो एक पूरा एक पैट जो उसका जो एक क्या कहते हैं उसे, एक पूरा खाका है वो वहां पे आउटलाइन हो जाएगा कि पानी ने किस तरफ से जाते हुए किस तरफ फ्लो करना है और किस तरीके से वो मेन चैनल में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जैसे ये ड्रेनेज पैटर्न बनता है, तो इस तरीके से ये जो है वो आपका यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास ये डिफरेंट मतलब सबसे पहले आपके पास क्या है कि ये सबसे हाईयर स्लोप्स हैं, पहले यहाँ पे पानी है, फिर उसके बाद ये नंबर्स असाइन हो जाएंगे। ठीक है, वो जो नंबर्स हैं वो फिर डिसाइड करेंगे कि सबसे आखिर में वो पानी कहाँ होना है, कहाँ कलेक्ट होना है। ठीक है, जैसे ये 0 0 एलिवेशन है तो डेफिनेटली वो जो आपका पानी है वो मुख्तलिफ रस्तों से होते हुए आपके पास जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आके सारा पानी जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो है वो फ्लो डायरेक्शंस की मदद से ड्रेनेज पैटर्न को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बेस के ऊपर फिर आप जो है वो कैचमेंट एरिया जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल एलिवेशन मॉडल। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। यहाँ पे आप सिर्फ ये देखें कि यहाँ पे जो ग्रिड सेल है वो 500 का है और यहाँ पे ग्रिड सेल जो है वो 1000 का है। अब 1000 फीट भी हो सकता है, 1000 मीटर भी हो सकता है और ये यूनिट कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें कहने का मतलब ये कि यहाँ पे ग्रिड साइज जो है वो हाफ है तो यहाँ पे फुल है, मतलब इस तरह से। तो यहाँ पे ग्रिड साइज छोटा है तो आपके पास आप देख सकते हैं कि ये सारे कैचमेंट एरियाज हैं। आप ये देख सकते हैं ये सारे कंटूर्स की बेस के ऊपर जो है वो चैनल का जो नेटवर्क है वो सारा एक्सट्रैक्ट हो गया है। आप ये देखेंगे ये आपकी मेन चैनल है। ठीक है, ये जो सेंटर में आ रही है, तो उसके बाद ये सारा जो आपका जो है वो ड्रेनेज पैटर्न है, ये देखेंगे कहाँ कहाँ से पानी आपका जो है वो कंटूर्स की शेप की मदद से। अब देखें जैसे ये जो पानी इस तरफ जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं। अब ये इन्वर्टेड वीज है, ये आप देख रहे हैं इन्वर्टेड वीज। तो इस तरीके से पानी जो है वो इन्वर्टेड वीज में से होता हुआ ये सारों का, ये देखें ये हर जगह से ये नीचे जा रहा है, इसके वजह पानी नीचे जा रहा है और इस तरह से ये कलेक्ट होके इस तरफ जा रहा है, इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो
इसमें आप देखेंगे जो ड्रेनेज पैटर्न अगर छोटा सेल साइज होगा तो ज़्यादा अच्छा ड्रेनेज पैटर्न आपके पास आएगा। लेकिन अगर सेल साइज ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे ये 1000 आप देखेंगे, इसमें फिर ये जो कैचमेंट एरियाज है ना, ये बड़े होना शुरू हो जाएंगे, ये देखें, क्योंकि उसमें सेल साइज बड़ा हो गया ना, तो इसलिए फिर ज़्यादा ड्रेनेज पैटर्न की ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन अगर सेल साइज छोटा है तो आपके पास ज़्यादा डिटेल आएगी ड्रेनेज, जो ड्रेनेज पैटर्न है उसकी। ठीक है, छोटे छोटे कैचमेंट एरियाज भी उसके अंदर, जैसे ये है, ये भी आ जाएगा, ये छोटा कैचमेंट एरिया है आपका, ये भी आ जाएगा इस तरह से, और भी ये वाला जैसे है, ये भी आ जाएगा। तो जब ग्रिड साइज बड़ा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आपका जो कैचमेंट एरिया है वो बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें से जो माइनर ड्रेनेज की जो लाइंस थी वो वहां से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से डिलिनिएशन होती है आपकी चैनल नेटवर्क की या ड्रेनेज नेटवर्क की फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द catchment area and watershed area. All right. So this is a practical example that is related to the upper Indus River, Pakistan, और ये एक पब्लिकेशन में मैंने ये जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस जो था वो किया था, तो उसमें ये जो है वो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट वाटरशेड्स हैं। ये देखिए, ये सारे जो है, ये जैसे ये हुंजा है, ये गिलगित है, ये शिगर रिवर है, ये शायाक रिवर है, ये अस्तोर रिवर है। तो अस्तोर रिवर का डाटा तो आपने यूज भी किया होगा। आप ये देखेंगे सारे जो छोटे छोटे कैचमेंट एरियाज हैं या जो वाटरशेड्स हैं छोटे रिवर्स के, ये सारे मिल रहे हैं आके बड़े रिवर के साथ। ये जो मेन आपके ये देखें, ये सारा इंडस रिवर है। ठीक है, ये जो है ना इंडस रिवर जा रहा है, तो ये सारे जो अदर रिवर्स हैं वो आपके इंडस के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये मतलब प्रैक्टिकली ये जो है वो ये जो एक्सट्रैक्शन थी वाटरशेड की, दैट वाज मेड ऑन दी एस्टर डेटा विद 30 मीटर रेजोल्यूशन। ठीक है, जितना बड़ा एरिया होगा उतना टाइम ज्यादा लगता है वाटरशेड को एक्सट्रैक्ट करने में। तो ये काफी बड़ा एरिया था, मोर देन 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारा जो था वो जीआईएस में जब प्रोसेस किया तो इसको तकरीबन 2 दिन लगे थे इस सारे एरिया को एक्सट्रैक्ट होने में। ऑल राइट, सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ अ रिवर। ठीक है, कि आप लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल जो है वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि रिवर का प्रोफाइल से क्या मुराद है, कि मतलब ये जो रिवर है, ये जो आपका ये जो रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये जो रिवर फ्लो हो रहा है, ये सेंट्रल लाइन है, इसका लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल अगर आप देखें डिजिटल फॉर्म में कि ये साइड से कैसे नजर आता है, तो ये उसका एलिवेशन प्रोफाइल है। अभी देखेंगे ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये आपका नॉर्दर्न एरिया से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। सॉरी, ये कुछ एरर्स इंड्यूस हो रहे हैं जब मैं इसको लिखता हूँ। ये देखिए, ये नॉर्दर्न एरिया से वो नीचे जा रहा है रिवर। ठीक है, और ये यहाँ पे आके ये आपका तरबेला डैम आ जाता है। ठीक है, आप ये देखेंगे इसमें कितने ज्यादा किंक्स हैं, ये आप देख रहे हैं इररेगुलर सरफेसेस कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली रिवर का ग्रेडियंट है जो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जा रहा है। रिवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट होता जा रहा है नीचे अगर आप जाएं तो ये सारे किंग्स हैं। ठीक है, इन किंग्स को कहते हैं निक पॉइंट्स। ठीक है, ये देखें, ये काफी बड़ा निक पॉइंट यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो निक पॉइंट्स होते हैं ये शो कर रहे होते हैं कि रिवर्स के अंदर किसी जगह पे शार्प जो है ना वो क्या कहते हैं शार्प, क्या कहते हैं उसे, कि क्लिफ्स की तरह के पॉइंट्स होते हैं जो कि जनरेटेड होते हैं, या तो वहां पे कोई लैंडस्लाइड एक्टिविटी होती है तो उसकी डेब्रिस पड़ी होती है, या फिर ये कि वहां पे कोई फॉल्ट लाइन होती है जिसने रिवर का एक पार्ट ऊपर कर दिया दूसरा नीचे कर दिया है। ठीक है, अ काइंड ऑफ ये वाटरफॉल्स होती है, शॉर्ट वाटरफॉल्स रिवर्स के अंदर होती हैं। तो ये जो निक पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट इसके रीजंस होती हैं। एक तो होता है टेक्टोनिक निक पॉइंट्स, के टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से निक पॉइंट्स बनते हैं, फॉल्ट्स बनते हैं, या फिर होता है लैंडस्लाइड डैम्स जो है वो भी इस तरह से निक पॉइंट्स बना देते हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर। ठीक है, तो अब इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल होता है उससे आप जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस जो है वो रिवर के कर सकते हैं। अब ये रिवर मॉर्फोलॉजी है कि रिवर किस तरह से अपना जो है वो वर्टिकली अपना जो प्रोफाइल है वो किस तरीके से चेंज कर रहा है। ठीक हो गया।
अब इसमें ये जो ब्लू एरोज है ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे ना डिफरेंट क्या कहते हैं ये रिवर्स मिल रहे हैं मेन रिवर के साथ। आप ये देखिए ये सारे रिवर्स यहाँ यहाँ पे इन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एरिया है इसे कहते हैं नांगा पर्वत हरामोश मसीफ। ये टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव एरिया है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा इंक्लिनेशन है, स्लोप काफी ज्यादा यहाँ पे स्टीप है रिवर की, ठीक है। और उसके बाद ये जो दूसरे ये जो लेजेंड्स है जैसे ये जी जी है, इसे कहते हैं गोलगोन, ये एरिया के नाम है। ये एक्चुअली लैंडस्लाइड डैम्स है जो कि हिस्टोरिकली यहाँ पे बने थे अर्थक्वेक एक्टिविटी की वजह से। और जब एक लैंडस्लाइड डैम बनता है तो वो जो रिवर होता है अपस्ट्रीम वो एक लेक की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जैसे कि अताबाद लेक है। तो वो इसी तरह से अताबाद लेक जो है वो तो नोन है कि कब बनी थी, कुछ साल पहले 2010 में। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जो लेक्स बनी हुई है आपको नजर आती है, जैसे लुलुसर लेक है। लुलुसर लेक जो है वो भी एक लैंडस्लाइड डैम की वजह से बनी, कि रिवर को किसी लैंडस्लाइड ने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करके फिर क्या हुआ कि वो पीछे तक, क्योंकि ब्लॉक करता है तो वो लैंडस्लाइड डेब्रिस जो होती है उसका उसका तो वो तो ऊपर होती है काफी ज्यादा, रिवर नीचे होता है, ऐसा ऐसा नीचे पीछे उसके अपस्ट्रीम पे फिलिंग शुरू हो जाती है और वो लेक बन जाती है। तो लुलुसर लेक भी इसी तरह से बनी थी, ठीक है। सतपारा लेक ऐसे बनी है कि रिवर मेन चौक हो जाता है, उसके बाद वो पीछे लेक बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लैंडस्लाइड डैम्स होते हैं ये निक पॉइंट्स क्रिएट कर लेते हैं और ये रिवर को चोक करते हैं। और इसी तरह से फिर वो जो होता है वो बाज़ दफ़ा अगर वो लैंडस्लाइड डैम्स ब्रेक कर जाएं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स आते हैं। तो अताबाद जो लेक है उसको अब काफ़ी हद तक स्टेबल कर दिया गया है, उसको एक ओपन चैनल स्पिलवे देके। तो हाईएस्ट पॉइंट तक वो वहां पे पानी नहीं जाता, बल्कि पहले ही वो जो है वो डैम को टॉप करने की बजाय वो साइड से निकल जाता है स्पिलवे से, ठीक है। तो अब वो डैम जो है वो काफी हद तक सेफ है। ऑल राइट। तो उसके बाद जब आप ये ये जो लॉन्गिट्यूडल प्रोफाइल है इसके साथ जब आप ये निक पॉइंट, ये सारे जो किंग्स हैं ये सारे निक पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये जितने भी हैं ये निक पॉइंट्स आप जो है वो मैंने क्या किया कि मैट लैब यूज की। मैट लैब के अंदर भी आप इसको ये जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है उसको यूज कर सकते हैं और ये सारे निक पॉइंट्स वहां से मार्क करके इनके कोऑर्डिनेट्स मैट लैब में सेव हो जाते हैं। उसके बाद वही जो डाटा है वो आप जीआईएस के अंदर जब लेके आते हैं तो ये देखें ये सारे जो रेड और येलो कलर के सर्कल्स नजर आ रहे हैं ये मेजर और माइनर निक पॉइंट्स हैं। तो ये सारे निक पॉइंट जो है वो आपके डिजिटल एलिवेशन मॉडल के ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं सारा। तो ये आपका जो है ना एरिया जहाँ पे ये गिलगित रिवर आ रहा है और ये आपका इंडस रिवर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, ये कराक्रम माउंट माउंट क्या कहते हैं उसे माउंटेन रेंज है और ये आपके पास जो है ये क्या कहते हैं उसे हिमालयाज हैं। और इस तरफ देखें तो इस तरफ आपके पास है हिंदू कुश, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट भी बना हुआ है जो कि जहाँ पे तीनों पहाड़ी सिलसिले जो है ना वो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये गिलगित और इंडस के कॉन्फ्लुएंस के बाद में ये पॉइंट है, वहां पे आप देख सकते हैं रिवर्स को। और ये दैट इज आल्सो कॉल्ड एज वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, कि जहाँ पे जो तीनों माइटी जो माउंटेन रेंजेस हैं कराक्रम, हिमालय एंड हिंदू कुश, ये सारी आपस में यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये आप ये स्कर्दू की तरफ एरिया जा रहा है, ये मतलब ये जो रिवर जा रहा है, ठीक हो गया इस तरीके से। तो ये उसका लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लैंडस्लाइड्स भी मैप हो गई है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो आपके जो टोपोग्राफिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसकी बेस के ऊपर आप लैंडस्लाइड्स को मार्क कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड्स ऑलरेडी ट्रिगर्ड हुई थी। तो ये जो निक पॉइंट्स हैं इनको लैंडस्लाइड्स की लोकेशन के साथ जो है कंपेयर किया गया और इस चीज़ को प्रूफ किया गया कि ये मेजॉरिटी ऑफ निक पॉइंट्स यहाँ पे जो है ना वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से रिवर के अंदर जनरेट हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे फॉल्टिंग जो है वो भी यहाँ पे एविडेंट है डिफरेंट जगहों पे रिवर के अलोंग जहाँ पे निक पॉइंट्स जनरेट हुए, ठीक है। यानी ये एक स्टडी थी जो कि माई सेल्फ मतलब इसको कंप्लीट किया। और
इस पे इससे कम से कम मेरे ख्याल में कोई 10 एक पब्लिकेशंस जो थी वो मैंने ये सारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उसके ऊपर जो जितना भी डाटा है सैटेलाइट बेस्ड और जियोलॉजिकल डाटा है या कुछ और साइज्मिक हैजर्ड्स का डाटा है वो सारा यूज़ करके, तो ये हैजर्ड मैपिंग जो है वो एक प्रोजेक्ट था मेरा, पीएचडी का भी प्रोजेक्ट था और उसके बाद मेरे पोस्ट डॉक का भी प्रोजेक्ट था। तो उसके अंदर ये सारा डाटा यूज़ हुआ और डिफरेंट पब्लिकेशन जो थी वो की गई और इंटरनेशनली you will see a lot of publications in these areas। अगर आप ऑनलाइन सेलेक्ट करें कि लैंडस्लाइड हैजर्ड मैपिंग अलोंग इंडस रिवर, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे सबसे पहले मेरी पब्लिकेशंस आएंगे जिसमें मतलब आपको ये सारा जो डाटा है उसमें आप देख सकते हैं और पब्लिकेशंस भी देख सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली एप्लीकेशन को डिस्कस किया है कि ये जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जांपल है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये कौन कौन सी लेयर्स आपके पास आती हैं। तो उनमें कुछ की एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है कि आप जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये तो एलिवेशन है, हाइट वैल्यूज हैं, ये एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट मीन के स्लोप्स किस तरफ जो है वो ओरिएंटेट कर रही हैं। ठीक है, ये भी एस्पेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इससे हम पता चलता है कि किस किस डायरेक्शन में जो स्लोप्स हैं वो ज़्यादा लैंडस्लाइड्स प्रोड्यूस करती हैं, ज़्यादा बेहतरीन होती है और इस तरीके से वो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्लोप मैप है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरफ ज़्यादा स्टीप स्लोप्स हैं, किस तरफ कम स्टीप स्लोप्स हैं, फ्लैट एरियाज कौन से हैं। यूजुअली ये एरियाज जो ये फ्लैट एरिया ये आपके माउंटेनस एरियाज हैं, ये स्लोप्स की वैल्यूज नज़र आ रही हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये कर्वेचर मैप है। अब यहाँ पे आपको इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मकसद यही है कि स्लोप जो कर्वेचर मैप है वो बताता है कि स्लोप कन्वेक्स अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। हिल शेडिंग मीन कि आप 3D एक्सप्रेशन ले लेते हैं। आप 3D एक्सप्रेशन जो है वो डिजिटल एलिवेशन मॉडल का जो है वो उसको आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स हैं आपके डिजिटल एलिवेशन मॉडल में। ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्शन, इसमें ये है कि आप डिफरेंट टाइप के जो जैसे स्ट्रक्चर मैप होता है कि आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल की जो ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी बेस के ऊपर आप डिफरेंट एरियाज में फॉल्ट्स को और फोल्ड्स को और अदर टाइप के स्ट्रक्चर जो है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हिल शेडिंग। जैसे अभी मैंने हिल शेडिंग, अब ये देखेंगे यहाँ पे ये आपके पास डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, तो इससे आप हिल शेड क्रिएट कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आप लैब भी करेंगे जिसमें आप खुद भी क्रिएट करेंगे डिजिटल एलिवेशन मॉडल से हिल शेड। हिल शेड में जैसे ये वाला एरिया आप देख लें, अब ये एरिया जो है ना वो टिपिकली यहाँ पे नज़र आ जाएगा आपको। ये सेम एरिया आप देखें यहाँ पे ये एलिवेटेड एरिया है, फिर साथ में डिप्रेशन है। तो हिल शेड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ना वो एलिवेटेड एरियाज और जो दूसरे एरियाज हैं डिप्रेशंस के अंदर एरियाज है या ओवरऑल जो है जो आपको टोपोग्राफी है किसी पर्टिकुलर एरिया की वो आपको इस तरह से नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें फिर क्या होता है कि इसी हिल शेड मैप के ऊपर जो है वो आप टोपोग्राफिक मैप को ओवरले कर सकते हैं। तो वो सारे यहाँ पे कंटूरिंग आ जाएगी आपके पास इस तरीके से। ये सारे कंटूर्स जो है वो डिफरेंट एरिया जो आपके माउंटेन्स के अराउंड हैं, डिफरेंट एलिवेशन कंटूर वो सारे ड्रा हो सकते हैं। या अगर आपके पास टोपोग्राफिक मैप ऑलरेडी जो है वो शीट की फॉर्म में जेपैग की फॉर्म में ऑलरेडी है तो उसको आप इसके ऊपर ओवरले कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया हुआ। ये जो है ये टोपोग्राफिक शीट जो है ये आप देख सकते हैं, ये टोपोग्राफिक शीट है जो कि हिल शेड के ऊपर ओवरले की गई ताकि आप लैंडस्लाइड्स को कंटूर्स की शेप की मदद से आइडेंटिफाई कर लें। ठीक हो गया। तो सिमिलरली एक और है जो एप्लीकेशन जिसे कहते हैं ड्रेप, सरफेस ड्रेपिंग। तो ये जो ओवरलैपिंग है इसको ये दिस इज अ काइंड ऑफ सरफेस ड्रेपिंग है। ये जो एक लेयर को दूसरी के ऊपर डालना। तो जैसे ये रेनफॉल है, लेट्स सपोज आपके पास रेनफॉल मैप है, डिजिटल रेनफॉल मैप है जो आप सैटेलाइट से लेते हैं और इसको अगर आपने ओवरऑल डिजिटल एलिवेशन मॉडल के ऊपर उसको ओवरले करना है। अब यहाँ पे आपको जो है वो ये तो पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है कहाँ पे कम है, लेकिन जब आप उसको उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वो रेनफॉल जहाँ का वो डेटा है उसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो देन यू कैन हैव अ 3D व्यू। आप ये देखेंगे ये आपके पास 3D व्यू आ जाएगा कि ये किस तरीके से आपके पास जो है वो मतलब डिफरेंट एरियाज में रेनफॉल की जो अमाउंट है वो आप
उसको देख लेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट आपके जो एप्लीकेशंस हैं कि आपके डिजिटल टरेन मॉडलिंग की या एलिवेशन मॉडल से जो आप डिफरेंट जो टोपोग्राफिक पैरामीटर्स लेते हैं, ये सारे हमने अभी डिस्कस किए। ठीक है, ऑल राइट, तो इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फर्दर जो एग्जांपल्स हैं वो हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टरेन को ज़ाहिर है कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल की मदद से विजुअलाइज कर सकते हैं, डिप्रेशन कहाँ पे हैं, टोपोग्राफी चेंज कैसे हो रही है, वो सारा देख सकते हैं। विजिबिलिटी एनालिसिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो विजिबिलिटी एनालिसिस है, ये एक्चुअली हम करते हैं डिफेंस पर्पस के लिए। जैसे कि कुछ हमारी जो चेक पोस्टें हैं वो जो है वो आपकी नीचे है और इंडिया की ऊपर है। ऑक्युपाइड जो रीजन है आपका कश्मीर का, उसमें आप देखें तो किसी जगह पे जो है वो इंडिया की चेक पोस्ट ऊपर है और हमारी नीचे है, किसी जगह पे हमारी ऊपर है तो उनकी नीचे है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है कि अगर डिफरेंट चौकियों को हमने देखना है कि वो एक दूसरे से नज़र आ रही हैं कि नहीं आ रही, तो उसे कहते हैं इंटरविजिबिलिटी एनालिसिस। आप इंटरविजिबिलिटी एनालिसिस की मदद से देख सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है क्या वो इंडियंस देख सकते हैं या नहीं देख सकते, या बीच में ट्रीज आ जाएंगे या कोई माउंटेन का पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इंटरविजिबिलिटी एनालिसिस जो है वो किया जाता है बाय यूजिंग द व्यू शेड्स ऑप्शन इन दी जीआईएस। व्यू शेड ऑप्शन जीआईएस में जब आप यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप ओवरऑल आपके पास लेट्स सपोज डिफरेंट पीक्स हैं आपके पे, आपके जो है वो डिजिटल एलिवेशन मॉडल के अंदर डिफरेंट पीक्स हैं। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि क्या इस पीक को इस पीक से देखा जा सकता है, इस पॉइंट को इससे देखा जा सकता है, इसको इससे देखा जा सकता है, ये इधर से नजर आएगी, ये इधर से ये वाला पॉइंट नजर आएगा। ठीक है, तो ये सारा जो ये लेट्स सपोज कि ये डिफरेंट पोस्ट हैं कि आपके पास चेक पोस्ट है मिलिट्री की, तो आप इनसे देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट कहाँ कहाँ से नजर आ रही, कहाँ से नहीं। तो ये सारी इंटरविजिबिलिटी एनालिसिस जो है ये आप कर सकते हैं अपने डिजिटल एलिवेशन मॉडल की बेस के ऊपर। और इस तरीके से आप मतलब आपको आपको जो है वो इसका जो है मिलिट्री एप्लीकेशन भी आप इसमें देख सकते हैं कि दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दी मिलिट्री डोमेन एज वेल। हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग, ये हमने जैसे कैचमेंट एरिया है, वाटरशेड एरिया, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। उसके अलावा देयर इज अनदर एप्लीकेशन दैट इज इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कि आपने लेट्स सपोज किसी भी हिली एरिया में रोड बनानी है। अब आपने ये देखना है कि कितना बड़ा कट लगाना है आपने। ठीक है, तो वो जो मटेरियल है वो कितना वहां से एक्सकेवेट करना है और कितना कहाँ पे डंप करना है। ठीक है, तो ये कट एंड फिल एनालिसिस। इस तरह से किसी और जगह पे आपने किसी लेट्स सपोज रोड को आपने मतलब एक्सपैंड करना है, किसी फ्लैट एरिया में भी अगर आपने जाना है तो वहां पे भी आप कट एंड फिल और इस तरह की जो एनालिसिस है वो आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल की बेस के ऊपर कर सकते हैं। आप कैचमेंट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आप रेजरवायर जो है किसी जगह पे आपने डैम बनाना है, ठीक है, तो डैम के पीछे पानी कितना खड़ा होगा, उस रेजरवायर की जो लेक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर डैम आप इतना बड़ा बनाते हैं तो कितना पानी इकट्ठा होगा, इतना बड़ा बनाते हैं तो कितना होगा, डैम को मजीद बड़ा बनाते हैं तो कितना पानी इकट्ठा होगा, और कौन कौन से एरियाज आपके इनंडेट हो जाएंगे, कहाँ कहाँ पे पानी जो है वो अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं उसे लेके जाएगा। रेजरवायर जो है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी लेक की, और उसके बाद उसका एरिया सरफेस कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो इस तरह की जितनी भी जो कंप्यूटेशंस हैं, एस्टिमेशंस हैं, ये सारी आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल को यूज करते हुए कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लड हैजर्ड्स को आप देख सकते हैं कि अगर ये डैम ब्रीच होता है, ठीक है, तो ये जो पानी है वो नीचे जाएगा तो कितने एरियाज में उसको अफेक्ट करेगा, ये पूरा जो वॉल्यूम यहाँ पे अपस्ट्रीम है। So there are lots of applications of the digital elevation modeling and also the digital terrain modeling in the earth sciences and engineering fields. तो ये डिपेंड करता है कि हम इससे किस किस्म का हमने इससे जो है वो क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो
फर्दर एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो अब ये भी मतलब डिजिटल एलिवेशन मॉडल से या डीटीएम है आपके पास, तो ये कंटूर्स ड्रॉ कर सकते हैं। कंटूर ये वही सरफेस ड्रेपिंग है कि हिल शेड आपके पास है तो सर्फ टोपोग्राफिक मैप उसके ऊपर आ गया, जो कि मैंने टेक्निक यूज़ की अपनी रिसर्च के लिए। तो ये इस तरीके से आपके पास ये हिल शेड बन जाता है। उसके अलावा क्या कहते हैं उसे, ये भी उसी तरीके से है कि आपके पास टोपोग्राफिक अदर इंफॉर्मेशन, आप जैसे ये लेक है या बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जो है वो मिल जाती है डीटीएम से। दिस इज ऑल एक्चुअली द विजुअलाइजेशन, कि आपको काफ़ी हेल्प मिलती है ये डीटीएम को यूज़ करते हुए जो है वो आपकी टोपोग्राफिक शीट जो है उसको 3D व्यू के अंदर कन्वर्ट करने में करने से काफ़ी हद तक आप जो है वो टरेन को समझ लेते हैं। ऑनलाइन उसके अलावा माइनिंग के लिए जैसे क्वेरी है, क्वेरी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कितना आपने, अगर लेट्स सपोज आपके पास लिथोलॉजिकल मैप है, आपके पास लाइमस्टोन का मैप है और डिजिटल एलिवेशन मॉडल भी आपके पास है, तो आप उससे वॉल्यूम कंप्यूट कर सकते हैं कि किस एरिया में कितना लाइमस्टोन पड़ा हुआ है, कितना मार्बल पड़ा हुआ है, और आप उसको विद विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख सकते हैं कि 10 साल पहले कितना मार्बल था, 8 साल पहले कितना था, 6 साल पहले कितना था, कितना माइन आउट कर लिया, कितनी जो है वो वॉल्यूम वहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया हुआ है, कितना रह गया है। तो इस तरीके से ये रिजर्व एस्टिमेशन और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो भी आप जो है वो यूजिंग द डीटीएम आप उसको टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वही एग्जांपल थी कि ये किस तरह से आप वाटर शेड एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये शायाक रिवर है, ये वाला इसका वाटर शेड है। ऑलराइट, तो ये वही चीज़ कि ये टोपोग्राफिक शीट को सरफेस ड्रेपिंग से आपने हिल शेड के ऊपर जो है वो ओवरलैप करके लैंड स्लाइडिंग जो है वो डिफरेंट एरियाज में हाईलाइट की, और ये सारे वही निक पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, कि जो जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द रिवर जो है उसकी बेस के ऊपर आप कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द क्रॉस सेक्शंस। आप ये देखिए, ये जो है ये जो लाइनें शो कर रही हैं, ये यहाँ पे इसके अलोंग ये क्रॉस सेक्शंस ड्रा किए हैं। ये सी डी, ये सी डी के अलोंग ये क्रॉस सेक्शन आप देख लें। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है, और उसके बाद ये जो ये एक्चुअली जो आपका ये अताबाद है, ये अताबाद का एरिया है। ये लैंडस्लाइड डैम यहाँ पे बना हुआ है, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन है कि किस तरीके से ऊपर से लैंडस्लाइड आई और वो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो हुंजा रिवर था, और उसके बाद ये जो मटेरियल है ये इसके ऊपर गिरा और उसने जाके ये सारे का सारा जो था वो रिवर चोक कर दिया, और ये लैंड मतलब एग्जिस्टिंग लेवल जो था रिवर का वो बढ़ गया, पीछे लेक बन गई, और जो है वो आपका लैंडस्लाइड डैम बन गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और सॉरी, जो अताबाद है वो यहाँ पे है, ये आप देखें, ये ई एफ जो है ये वाला, ये अताबाद वाला है। ठीक है, ये जो ये उसके अपस्ट्रीम है, ये एक और लैंडस्लाइड है जो कि लेक के अंदर ही आ रही है, ये उसके अपस्ट्रीम है, सी डी वाला जो है। तो ये आप जीआईएस को यूज करके प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप डिफरेंट जो लैंडस्लाइड ऑलरेडी ट्रिगर्ड हो चुकी हुई है उनको आप उनकी क्रॉस सेक्शंस या उनके प्रोफाइल को भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी एग्जांपल है। So these are the useful links to extract the digital elevation model ऑफ यूर स्टडी एरिया। पूरे ग्लोब के डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स गिवन है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल बिफोर द मिड टर्म, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। और जो मिड टर्म है उसका जो है अब ये यूनिवर्सिटी पॉलिसी देगी कि ऑनलाइन होना है या वो ऑन कैंपस होना है, तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये सारा जो सिलेबस है जहाँ तक हमने डिस्कस किया है ये सारा मिड टर्म का हिस्सा होगा, और मिड टर्म के अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, और उसके अलावा जो क्विज है वो नहीं हुआ तो मिड टर्म के साथ ही आपका जो क्विज है वो भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, और उसको भी जो है वो मिड टर्म के साथ ही जो है वो क्विज भी ले लेंगे। ठीक है,
तो ऑनेस्ट तरीके से आप तैयारी करें, आप ऑनेस्ट तरीके से अपने लेक्चर्स को रिवाइज करें, ठीक है। और अगर ऑनलाइन में टर्म होता है तो काइंडली चीटिंग से गुरेज करें। और चीटिंग का मतलब ये है दो नंबरी। दो नंबरी का मतलब ये है कि अगर जितने भी आपके नंबर आएंगे, ये अगर आपके वैसे आ रहे थे 30 में से 20 नंबर, और चीटिंग करके अगर आपने 28 नंबर ले लिए तो ये 8 नंबर आपके दो नंबरी के नंबर होंगे। और अगर आपकी जो डिग्री है, लेट्स सपोज उसमें आपकी जेन्युइन एफर्ट शामिल नहीं है, उसमें दो नंबरी भी शामिल है, तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे ये जो दो नंबरी की बेस के ऊपर फिर आप जो भी ब्रेड एंड बटर जो अर्न करेंगे उसमें वो दो नंबरी शामिल होती जाएगी एंड तक, ठीक है। तो काइंडली ये जो चीटिंग वाला मामला है इसको इससे दरगुजर करें, चीटिंग छोड़ें और अपनी मेहनत की जो है ना उसकी बेस के ऊपर आगे आए, ठीक है। तो ये चीजें अगर बंदा सोचे तो ये बहुत दूर तक जाती है। तो हमेशा जो आपको आता है आप दूसरे की हेल्प जरूर करें, दूसरे को हेल्प आउट करें, ठीक है। लेकिन उसको चीटिंग करने के लिए अपनी चीजें मत दें, ठीक है। अपनी असाइनमेंट्स को कॉपी करने मत दें। ये अगर आपने लेट्स सपोज खुद से वो बनाई है, दूसरों को जो है वो आप फी सबीलिल्लाह जो है वो आप शेयर कर लेते हैं, तो इसका कोई सवाब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप लोगों को दो नंबरी करने का मौका दे रहे हैं। तो ये कल्चर हमारा खत्म होना चाहिए, चीटिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। मेहनत करें, ठीक है। जो मेहनत करके अगर आपका CGPA 3 भी आया है तो वो 3.8 GPA से बहुत बेहतर है जिसमें दो नंबरी शामिल है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, तो इसलिए आप अपने आप को तैयार करें, मेहनत करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। सो ऑल द बेस्ट, और लेट्स सी कि अब मिड टर्म को किस तरह से कंडक्ट करना है। जो भी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होगी उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू।